I'll just share my screen and we will start now. So like I was saying, the bookkeeper course, this is like a part of the bookkeeper course. Many of our students have also joined here in this webinar. It's just like a bonus lecture to them as well. And a lot of new guests have been invited to this webinar. Something about us, what is SBM Gunas all about? We'll start with that. Guna is a Sanskrit term for quality, and quality of human life is improved by education. We, the professors here at SBM Gunas, work on that quality of yours. So basically what we work on is improving your skill. And in the digital era, we've chosen this mode of reaching to you digitally and teaching you. I don't say this as a teaching, I call it as a coaching, because what we do in our classes is something unique. And in that way, in the e-learning era, we are your knowledge builder. About you, Yogesh had a good round of interaction with you all. And basically what we understood from this round of interaction is that majorly many of you are students here, and some also work. Okay. So nevertheless, this is just a good session for everyone. One who is a student will get to learn it in a practical sense. Like we say this normally in our class that it's very it's not that good, because entire graduation you have done, but कहीं ना कहीं वो एक चीज मिसिंग लगती है कि यार इसमें practical element कहाँ रह गया. So that we have tried to cover up and touch up here, and you will get a good exposure on the practical front of GST and TDS both. For people who are working, this will help you. Like we will also be sharing a checklist with you at the end. So that checklist you can keep with you, and you can use it in your day-to-day affairs and daily life. So it's a course, and it is structured in such a way that it will train a student to be a professional bookkeeper within the span of 1 month. So it's a month-long course, and the coursework is designed to include the necessary skills. In between, I will be including that part as part of my session only, that what skills do we cover. Okay. And these skills that we have identified will be like the necessary skills that will make you the expert in maintaining accurate books of accounts, be it an individual's book or the books of the business. Okay. So if you are head on to the accounting career, the bookkeeper career, so you are at the right place. So let's start. Let's start for today. And the first topic of discussion is on GST. Okay. So we call it the GST checklist. In this checklist, there are various items. And मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूंगा ताकि हमारी ऑडियंस काफी कंफर्टेबल रहे. Okay. So GST, goods and service tax. Basically आपको पता होगा GST हम कलेक्ट करते हैं हमारे सेल्स पे, और जीएसटी कई टाइप्स के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. बट क्या करें हम रिटर्न्स फाइल करने से पहले, ये हमें ये चेकलिस्ट बताएगी. सो व्हाट ऑल थिंग्स डू वी टेक केयर बिफोर फाइलिंग आवर रिटर्न्स? विल स्टार्ट. Two things. One is checklist for sales, another is the checklist for purchases. Start with the sales checklist. तो सेल्स यानी मैंने जो गुड्स बेचा, मैं जब सेल कर रहा हूं, उस गुड्स पे मेरे को क्या क्या चेक करना है, मेरे सेल्स पे मुझे क्या क्या चेक करना है. सबसे फर्स्ट, देयर आर वेरियस प्रोविजंस दैट यू मस्ट टेक केयर एंड यू नीड टू चेक देम. दीज प्रोविजंस आर section 12, time of supply, because time of supply, section 12 and section 13 both, time of supply is very relevant because you need to know when does your liability to pay GST arises. तो ये जो सेक्शन है वो आपको ये बताता है कि ये पॉइंट पे, लाइक इस डेट पे ये लायबिलिटी अराइज हुई है, और अब इसके नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली यू देन गो ऑन एंड पे जीएसटी. सो section 12 and section 13, which deals with time of supply of goods, that is very very relevant. And to give you more insights, like you also have a provision that
helps you to raise invoices. तो invoice raise करने के provisions अलग है, time of supply के provisions अलग है, and based on time of supply your liability arises. Okay, so basically it's the time of the basis of liability is the time of supply. Okay, so we cover time of supply here, then we cover time of supply issue of tax invoice, which is under section 31, debit note and credit note under section 34. तो टैक्स इनवॉइसेस कब इशू होता है? टैक्स इनवॉइसेस गुड्स के केस में इमीडिएटली इशू होने चाहिए, और सर्विसेज के केस में यू हैव टाइम टू इशू टैक्स इनवॉइस, दैट इज एक बार आपकी सर्विस खत्म हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रेस करना है, एक इनवॉइस को रेस करना है. सो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को भरो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने टाइम पे इनवॉइस नहीं रेज किया तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस विच एवर इज अर्लियर बोलता है, तो एक बार टाइम ऑफ सप्लाई अक्रू हुआ, भले ही आपने इनवॉइस नहीं इशू किया, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ सकती है, एंड दैट वुड बी लाइक अ डेंजरस थिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट? सो verify these provisions before filing the returns. Then you will have to look the content of the tax invoice, which is of course in rule 46. कंटेंट यानी एक जीएसटी का टैक्स इनवॉइस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें होती है जो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी चाहिए. वो चीजें क्या होगी कि एक टैक्स इनवॉइस में एक इनवॉइस नंबर को मेंटेन करना, और उसके अलावा उसमें आप जीएसटी कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, कितना आईजीएसटी है, वो आप मेंशन करो. और फिर आप ये भी उसमें मेंशन करो कि सामने वाले का जीएसटी नंबर क्या है. उसमें दो तरीके की सेल होती है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर. सो बिजनेस टू कंज्यूमर वाले सेल्स में नहीं मेंशन करोगे चलेगा, बट बिजनेस टू बिजनेस वाले सेल इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए. उसमें HSN कोड और वो सारे कोड्स भी मेंशन होने चाहिए. सो जीएसटी डिपार्टमेंट हैज एक्चुअली इशूड a format for issuing of tax invoices, and you'll have to raise your tax invoices according to that. So you'll have to check the contents of tax invoice. Okay, then you have a tax invoice called for B2C sales, which is greater than 50,000, because इस tax invoice को specifically GST returns में अलग से mention करना पड़ता है कि कितने इतने type के tax invoices कितने numbers में issue हुए हैं और उसके details feed करना पड़ता है. So that should be separate. कुछ सेल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल्स हो. सो व्हेनेवर यू हैव एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल्स, there are two possibilities there. One, you already have a letter of undertaking. What's a letter of undertaking? कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल्स को जीरो रेटेड सेल्स भी कहता है, तो इस पे आइडियली जीएसटी चार्ज नहीं करना है आपको, बिकॉज इट इज जीरो रेटेड. सो जीरो रेटेड मी बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स. तो आपके पास उस केस में दो रास्ते, या तो एलयूटी लो, या तो एलयूटी अगर आप नहीं लेते तो उस पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक यू चार्ज जीएसटी फ्रॉम समवन एल्स, बट यू पे द जीएसटी, ओके, एंड क्लेम रिफंड ऑफ इट. इट्स द लेटर स्टेज. ओके, बट आइडियली आपके पास, अगर आपने विदाउट जीएसटी एक्सपोर्ट किया है तो आपके पास एलयूटी होने चाहिए. ठीक है, LUT इज अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एंड देयर यू स्टेट कि आप विदाउट जीएसटी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो बिना पे किए. इस केस में भी रिफंड मिलता है लेकिन इनपुट्स के. ठीक है, सो दैट इज अगेन अ क्रिटिकल एस्पेक्ट टू. And then you'll have to check the GST rate. Checking the GST rate is also a neglected factor. Many people think कि GST rates तो सारे same होते हैं, but नहीं, council meetings के through काफी GST rates में भी revision आते हैं. आप cbic.gst.gov.in पे जाओ, goods and services के rates वहाँ पे listed है, and वो rates आपको वहाँ से check करना है आपके GST के. ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी स्क्रीन पे कि आप पहले तो कुछ प्रोविजंस है जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस इशू करने के, तो वो चीजों को अच्छे से चेक करो. सेकंड इज उसके कंटेंट्स की, अपने मेरे अगर सेल्स के इनवॉइस है तो उसमें जो नेसेसरी कंटेंट्स है मैं वो प्रॉपरली डाल रहा हूँ. B2C सेल्स अगर ग्रेटर देन 50,000 वैल्यू है तो उसके कंटेंट्स में प्रॉपरली रख रहा हूँ, वो भी मेरे रिकॉर्ड लॉग में होना चाहिए. मेरे पास LUT है अगर मैं एक्सपोर्ट के सेल्स कर रहा हूँ. अगर LUT नहीं है या LUT है तो वो इनवॉइस पे मेंशन करना भी जरूरी होता है. फिर मैं जीएसटी के रेट्स भी चेक करता हूँ. और एक नेसेसरी पार्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई का. अब प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे रोल प्ले करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. प्लेस ऑफ सप्लाई, द
place of service provider and if the place of supply, not the recipient, place of service provider and the place of supply, if they are in two different states, तो IGST charge होता है. If they are in the same state, then CGST SGST चार्ज हो जाता है. सेम अगर वो लोग यूनियन टेरिटरी में सेम यूनियन टेरिटरी में है तो भी CGST और UTGST चार्ज होता है. ओके, इफ इन केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन द सेम स्टेट और स्टेट से लेके यूनियन टेरिटरी में भी जाता है तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है. तो अभी ये सारे प्रोविजन जब लग रहे हैं तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत रेलेवेंट होता है. एंड CGST SGST IGST ये गलत हेड्स अगर में आप भर देते हो तो आपको आगे जाके जब पता चलता है उसको रेक्टिफाई करते हो तो उसके डिफरेंशियल अमाउंट का इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल when you file your GST return. You ensure that you have checked the place of supply rules as well. Okay, I've explained well where the place of supply rules helps you. It helps you in identifying whether to charge CGST SGST or to charge IGST at a particular point. Then while filing GST returns, like I said, there are two elements. एक तो है sales. तो sales में आपने कुछ चीजें चेक कर ली और आप पहुंच गए कंक्लूजन पे. अब आप परचेजेस में कुछ चीजें चेक करोगे. फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव अ टैक्स इनवॉइस. ओके, कोई भी क्रेडिट क्लेम करने के लिए टैक्स इनवॉइस इज अ मस्ट. ये बोलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2A that possession of a tax invoice is a necessary, it's compulsory for availing an input tax credit. Second, verify and ensure that goods and services has been received before claiming the credit. Okay. Yeah, so there are few people who like using annotations on screen. I just disable it because it's a bit of a disturbance. So I've disabled it. Yogesh, can me help me erase this? Okay. Okay, so possession of tax invoice. पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस इज अ नेसेसरी कंडीशन. फिर सेकंड मैंने कंडीशन कहा कि एक तो आपको टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सेकंड कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज सारा रिसीव हो गया है, वो भी एक नेसेसरी कंडीशन है. ओके, कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो गए हैं. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बोलता है कि रिसीव होना बहुत जरूरी है. कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो. सो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि द सर्विस इज स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड इन सच केसेस अगर पता चलता है कि रिसीट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कंटिन्यूस सप्लाई में जब तक लास्ट सपोज इनवॉइस गुड्स नहीं मिलता तब तक आप क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते. तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि प्रॉपर क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हो. Okay. I think we've not been able to clear these annotations. Okay. Nevertheless, we'll move forward. Imports to be matched with the with the DGFT portal. Sorry, this is not the GSTR portal, it's the DGFT portal. Imports के केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. Normally imports के केस में custom duty लगता है. एक element of the custom duty is also GST. Okay, it's like IGST. And इसका भी matching जरूरी है. सो नॉर्मली जब मैं कोई परचेजेस करता हूँ तो उसका IGST कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? GSTR 2A में. सो GST पोर्टल में एक्चुअली एक सेक्शन है GSTR 2A का जहाँ पे नॉर्मल परचेजेस के क्रेडिट्स मिलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स. बट इंपोर्ट्स के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A में नहीं दिखेगा. तो वो केस में बहुत नेसेसरी है कि आप DGFT के पोर्टल पे जाओ और वो पोर्टल पे जाकर आप उसका क्रेडिट चेक करो. Okay, so that in that case imports have to be matched from the DGFT portal. It's not the GSTR portal as mentioned here, it's the DGFT portal. एक और काफी important provision है. ये provision क्या बोलता है कि suppose आप कोई goods और services ऐसे supply कर रहे हो जो either exempt है, okay, either exempt है या nil rated है, okay,
या फिर आप बोल सकते हो वो पर्सनल कंजम्पशन में यूज हो रहा है। अगर समझो आपके आउटवर्ड सप्लाईज ऐसे जगह पे यूज हो रहे हो, ठीक है, सपोज मेरा 50 लाख का सेल्स है, उसमें से 5 लाख का सेल्स इज टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट, ओके, सो देन आई विल हैव टू रिवर्स माय इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑल्सो। इसका इम्पैक्ट, मेरे सेल्स का इम्पैक्ट मेरे परचेजेस पे भी आता है, ठीक है। इस केस में दो तरीके के रूल रखते हैं, रूल 42 एंड 43। वी डिड नॉट गो इनटू nitty-gritties ऑफ these sections, but in a broad sense if I say, there is a small calculation that we do and we reverse those inputs, okay. So there is a reversal of those inputs in case you have a supply which is exempt or nil rated. And this again is like it goes out of the eye of an accountant. Maybe he does not understand these provisions. तो इस केस में आप लोग ये ध्यान रखना कि कभी भी मतलब ऐसे कोई इंस्टेंसेस आपको दिखे तो आप रूल 42 रूल 43 रेफर करो एंड उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा रिवर्सल कर लो, ठीक है, अपने परचेजेस में। सो क्रेडिट के रिवर्सल्स होता है, इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों केस में रिवर्सल्स होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनपुट्स का रिवर्सल होता है, इनपुट कैपिटल गुड्स दोनों के रिवर्सल्स इफेक्ट होते हैं। देन वी हैव a point that says always match your GST cash and credit ledger, ठीक है। whatever GST cash and credit ledger you have when you prepare the accounts, okay, उसी टाइम पे पोर्टल के साथ उसको मैच कर लो, ठीक है, पोर्टल पे उसको पूरा मैच कर लो एंड वो जो मैचिंग आप रखोगे पोर्टल पे वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिमिलर रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाके उसको रिकंसाइल करने में बहुत दिक्कत आती है। We have some more on purchases. There's a bit of a problem with the annotation here, but I will say that this point is avail RCM in the next month. Okay. Just a second. Huh? I'll arrange something. Okay, I got it. Just a second. Okay, I solved it. Chalo. Okay, no problem. अवेल आरसीएम ऑफ द लास्ट मंथ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे काफी लोग टैक्स भरते हैं और उसका क्रेडिट मिलता है अगले महीने में, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाइल यू डू योर परचेजेस, वाइल फाइलिंग योर रिटर्न्स। तो आपको आरसीएम का क्रेडिट अवेल करना है। नेक्स्ट पॉइंट is ensure all credit notes have been accounted accordingly, okay. So you will also have to take care कि नॉर्मली डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स जो भी सप्लायर आपके इशू करते हैं तो उसमें से क्रेडिट नोट्स का इम्पैक्ट भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लो। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो शायद हमारे ध्यान में नहीं आए। तो आपको हर बार जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त अपने क्रेडिटर्स का एजिंग स्टेटमेंट निकालना है। क्रेडिटर्स का एजिंग स्टेटमेंट आपको क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि जीएसटी का एक प्रोविजन ये भी बोलता है कि अगर हमने 180 डेज में हमारे क्रेडिटर्स को पे नहीं किया, what did I say? If I do not pay my creditors within 180 days, I will have to reverse my input tax credit. I will have to reverse my input tax credit with interest. Okay. So that interest liability could also arise, and therefore you need to check your creditors aging statement accordingly. और 180 days में उनको पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको रिवर्सल भी कर देना है। जब तक आप रिवर्सल नहीं करते तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा, सो जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा, करेक्ट। अदरवाइज क्या होगा, जब ऑडिट होगा, सीए आएंगे और तब चेक करेंगे तो देन लेटर स्टेजेस पे, ऑडिट के स्टेजेस पे वो लोग जाके उसका रिवर्सल करवाएंगे आपसे, और अगर तब जाके ऐसा हुआ तो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा आपका। सो रादर यू टेक इट एट एन एडवांस स्टेज एंड रिवर्स द क्रेडिट अर्लियर। Next point. Next point is also very important. There are certain credits that are blocked under GST. Okay. These credits are called block credits, section 17, subsection 5. ये block credits, कुछ example अगर मैं आपको दूं, so these involves like
block credits involve restaurant bills, पर्सनल कंजम्पशन वाली चीज है। तो अगर आपने गुड्स खरीदे और समझो चोरी हो गई तो उसका क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है। तो ऐसे पूरी एक लिस्ट है ब्लॉक क्रेडिट्स की। डिस्ट्रॉय हो गई समझो, पड़े पड़े, फ्री गिफ्ट में बांट दी समझो, ठीक है। तो ये सारे कुछ आइटम्स है जो हो सकता है एक नॉर्मल बिजनेस में, इनफैक्ट काफी होता होगा, ठीक है, बट हमारे ध्यान में नहीं होता, तो हम उसका क्रेडिट भी ले लेते हैं। हमें लगता है कि बिजनेस के नाम पे बिल आ गया तो ले लेते हैं क्रेडिट, बट हर चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ब्लॉक्ड। सो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। So when you take care of this section, you can block it at the initial level itself so that later on reversals की जरूरत नहीं पड़े और liability नहीं आए हमारे सर पे. So block credits is another important element that you need to take care of. Check the details of TDS and TCS on GST portal. There are certain instances where GST में भी TDS और TCS का concept है। कब होता है? Suppose कि मेरा restaurant है, तो restaurant जैसे स्विगी है, जोमेटो है, वहां पे लिस्टेड है, या फिर मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करता हूँ, ओके। सो उस केस में वो लोग हमारा टीसीएस काटेंगे, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे वो टीसीएस काटते हैं। और टीडीएस भी काटा जाता है, गवर्नमेंट हमारा टीडीएस काट सकती है जब भी हम गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे। तो इस केस में वो मेरे क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होता है जीएसटी पोर्टल पे। तो आपको जीएसटी पोर्टल के सर्विसेज के अंदर जाना है, क्रेडिट लेजर पे चेक करना है और उसको क्लेम करना है। So even that is very important. You check the details of TDS and TCS on the GST portal. This is what they have said. Check stock transfers. So also very important क्योंकि stock transfers के cases में भी GST भर, it's a supply, okay, supply made to related person, even if made for not no consideration, still a supply. Supply made to related party without consideration is also a supply, okay. Otherwise supply consideration is a necessary condition, but this is specifically covered under schedule 1, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एक पार्टी, जैसे मेरा एक ब्रांच है मुंबई में, दूसरा ब्रांच है कर्नाटका में, मुंबई वाला ब्रांच एक स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है कर्नाटका को। सो जब यहां से यहां स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो मुंबई वाले ब्रांच ने भी उस पर जीएसटी चार्ज किया होगा। सो कर्नाटका वाले ब्रांच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो क्रेडिट बिल है। तो ऐसे चीजें कहां से पता चलेगी, आपके स्टॉक ट्रांसफर्स अगर आप देखो प्रॉपरली तो, ठीक है। कंपनी एक है, याद रखना, सेट ऑफ के रूल्स होता है और रूल्स के हिसाब से ही आपको सेट ऑफ करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे रूल्स कैसे है, ओके। सो दिस इज लाइक जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ रूल्स। सो मैं बस ब्रीफ में आपको एक बताता हूँ कि कैसे होता है। इनपुट ऑफ आईजीएसटी, इनपुट ऑफ सीजीएसटी, इनपुट ऑफ एसजीएसटी, ये हमारे लेफ्ट साइड पे है। ऊपर टॉप पे है आउटपुट ऑफ आईजीएसटी, आउटपुट ऑफ सीजीएसटी एंड आउटपुट ऑफ एसजीएसटी, ओके। सो इसमें होता कैसे है कि इनपुट आईजीएसटी के सामने मैंने 1 लिखा है। इनपुट आईजीएसटी के सामने इनपुट आईजीएसटी का लायबिलिटी पहले पे करना है, इसलिए इसका 1 है। फिर सेकंड है, इनपुट आईजीएसटी के सामने इनपुट आईजीएसटी का क्रेडिट हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने ले सकते हैं इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन, like it is favorable to us, we have to take. That is 2. That is the second in the consideration. Third, ITC of IGST should be exhausted completely. Okay, it should be utilized completely. अब एक बार IGST का इनपुट हमारा पूरा यूज हो गया ना, फिर हम दूसरे इनपुट्स पे जाएंगे, ठीक है। पहले 1 2 3 करना है हमें। 1 क्या करना है, IGST का इनपुट अगर रहा तो IGST का लायबिलिटी पे करना है। फिर CGST SGST का लायबिलिटी हम इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन क्लेम कर सकते हैं। एक बार आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट हो गया, उसके पास आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हम क्लेम करने आएंगे। सीजीएसटी का क्रेडिट हम पहले सीजीएसटी के सामने लेंगे, फिर आईजीएसटी के सामने लेंगे, फिर उसके बाद एसजीएसटी के क्रेडिट के लाएंगे, पहले एसजीएसटी का क्रेडिट लेंगे, फिर आईजीएसटी का लायबिलिटी के सामने एसजीएसटी का क्रेडिट को ले लेंगे। इसमें 2 बॉक्सेस आप देख रहे हो रेड में, यानी वो आपस में सेट ऑफ नहीं होती। क्या नहीं होती, सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होती और एसजीएसटी सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होती। तो ये 2 क्रेडिट्स इसलिए मैंने रेड डब्बे में रखे हैं, ओके। सो दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ द एंटायर क्रेडिट पैटर्न, credit utilization pattern, okay। So this was in all like the checklist for GST. We will of course share you all personally over email these checklists for your benefit, but nevertheless, like I said, we will just give a short introduction of our course as well.
consider this as an advertisement break for you all. The bookkeeper course. So what is the bookkeeper course all about? Okay, so and when is it starting? So it's a course that we do online on Zoom calls पे होता है ये course, and ये course suitable है accountants और bookkeepers के लिए, जैसे मैंने बताया. और 7 सितंबर से स्टार्ट होगा. हम 6 स्किल सेट्स, जैसे हमारा नाम है SBM गुणास, हम गुणों पे काम करते हैं, ठीक है. तो हम 6 स्किल सेट्स डेवलप करते हैं किसी में. हाईली इंटरैक्टिव सेशंस होता है और हम पर्सनल इंटरेक्शंस के थ्रू बात करते हैं. एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट दिया है इस पे. तो अभी इस केस में क्या होगा, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं टीचिंग नहीं करता, मैं कोचिंग करता हूँ, इज बिकॉज वी बिल्ड आवर ओन वीडियो लाइब्रेरीज, एंड वहां पे लोग जाके वीडियोस देखते हैं, एंड फिर वो लोग ने समझो पूरा रिपोजिटरी देखा, फिर वो हमारे पास आते हैं, तो आते हैं डाउट्स और क्वेरीज के साथ. और जो वीडियोस में भी है, हमने प्रैक्टिकली दिखा रखी है कि भैया ये रिटर्न फाइल करते हैं तो कैसे करते हैं, ये पेमेंट करना है तो कैसे करना है. सो इसमें नो क्लटर, लाइक जो एकेडमिक नॉलेज है ना, जैसे कॉलेजेस में होता है, उस तरीके से नहीं होता. इसमें कंप्लीटली हमारा फोकस है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले बंदे को. ओके, सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसलिए हम इसे कहते हैं. एंड वी ऑल द प्रोफेसर्स दैट teach or coach here in SBM Gunas are chartered accountants only, so that you get the best out of us. Okay, and we've been working from the last 10 years in the same field. We've been studying in the same field, working, doing articleship, everything included. Everything, whatever we learned from these years, we've tried to put it up in a small capsule. Like when you get ill, you take a small capsule. छोटी सी गोली कैसे आपके सब प्रॉब्लम्स को दूर करता है, इसी तरीके से हमने ये 1 महीने का कोर्स बनाया है. फर्स्ट स्किल जिस पे हम काम करते हैं वो अकाउंटिंग. देखो कैसे ये सारी चीजें आपको ऐसे लग रही होगी आपने कॉलेजेस में तो सीखा है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने आती है, वो पूरी यूनिक होती है. ठीक है, अब उसको लिंक करना, लाइक एक थियोरेटिकल नॉलेज जो हमारे पास है, उसको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जब लिंक करने जाते हैं, वहां पे हम थोड़ा नॉट सो कॉन्फिडेंट होता है. सो दिस कोर्स इज राइट फॉर यू. So it's like what we will do is we'll pick up same concepts that learned for commerce always, but we will put up a practical element there, and then make you go through certain assignments that we give, so that you actually think upon it. You think कि यार मैंने आज तक इस एंगल से क्यों नहीं सोचा, किसी ने मुझे इस एंगल से क्यों नहीं बताया. और अगर ये इतनी सी बात है, अगर ये मुझे पहले पता चल जाती, सोचो अगर आपको ये इतनी सी बात 11th में सिखाई जाती, तो आज आप बिल्कुल भी अपने जॉब में नॉट सो कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होते, आपके पास भी ये इतने सालों का एक्सपीरियंस होता. But somewhere, like the academic knowledge is not so good enough to cover up all those aspects. Okay, so that is what we have tried. We have tried our level best to cover here, not make it theoretical, make it a bit practical. Second skill that we work upon is GST. GST, like we have had just a session today, इसमें जो मैंने sections कहे, उनमें से सारे important sections like basic concepts, a few definitions, time of supply, place of supply, input tax credit, RCM किस किस पे लगता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे करी जाती है, रिफंड्स कौन से केसेस में मिलते हैं, क्या क्या और स्पेशल एस्पेक्ट्स है जीएसटी में जो हम कवर कर सकते हैं. इसमें इन डेप्थ बातें होती है हमारे कोर्स में, और ये इन डेप्थ बातें हमें पूरा एक स्ट्रक्चर दे देती है जीएसटी को समझने का. ओके, थर्ड स्किल इज इनकम टैक्स. ओके, सो जस्ट लाइक कुछ क्वेश्चंस मैं उठा लेता हूँ. आई थिंक समवन हैज आस्क्ड what is the interest rate. Interest rate under GST is normally 18% and 21% if you have claimed ITC incorrectly. Okay, फिर है ये कोर्स की कोई कौन सी एलिजिबिलिटी क्या है. ओके, सो इट्स लाइक एन इन हाउस क्रिएटेड कोर्स, तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ कोर्स है. ऐसी कोई एलिजिबिलिटी होती नहीं है. अगर आप 13th में हो, 14th में हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए और अकाउंट्स में आपका एम होना चाहिए कि भाई मैं अपना करियर बनाऊंगा तो अकाउंट्स वाले फील्ड में बनाऊंगा, वो हमें चाहिए. जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट है. तो एज सच कोई एकेडमिक एलिजिबिलिटी नहीं है. एवरीवन कैन कम इन whomsoever is interested, and what you will take out is all these things from the course. Okay, so the 6 skills that we are talking about.
थर्ड स्किल इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में हम क्या क्या कवर करते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट, हेड ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेमेंट्स एंड रिटर्न्स, सर्टेन कैश रिलेटेड प्रोविजंस, क्योंकि आप नॉर्मली अकाउंटेंट हो तो जाओगे काम करोगे तो ये सारे कैश वाले एलिमेंट से काफी कुछ डील करोगे। कुछ डिडक्शन है जो इनकम टैक्स में जो आपको नेसेसरी है जानना, डेप्रिसिएशन, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में सिखाएंगे। ओके, I can see questions here, but just let me complete first. Okay, I'll take care. फिर है फोर्थ चीज है बैंकिंग एंड फाइनेंस। सी नॉर्मली हमारे दिमाग में जब आता है कि यार मेरे को अकाउंट सीखना है तो हम एक एस्पेक्ट से देखते हैं, सिर्फ अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, या फिर हम कोई एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छी एंट्रीज पास कर देता हूँ। सिर्फ एंट्रीज पास करना जरूरी नहीं है, उसके इर्द गिर्द की चीजें भी सीखना स्टार्ट कर दो। ये हमारा हाईली रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स, इसका ऑलराउंड नॉलेज जब आपको होगा इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिकॉज डे टू डे अफेयर में आप सोचो आपके काम क्या आएगा एज अ बुक कीपर। बैंक से आप डील करोगे, कस्टमर से आप डील करोगे, टैक्सेस से आप डील करोगे। सो यहाँ पे हम किस किस तरीके का फाइनेंस होता है, बैंक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, स्टॉक एंड बुक डेट्स कैसे रखे जाते हैं, बैंक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज में कैसे डील करता है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है जो आपको समझने चाहिए ताकि आप कोई भी एनालिसिस कर सको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के, वो तक सिखाते हैं। Another skill that we work upon, very important, is information technology. इसमें हम MS Word, MS Excel, Tally, QuickBooks, ZohoBooks और other communication tools cover करते हैं। Normally an accountant would say think Tally Tally Tally, मेरे को 2-3 महीना Tally सिखा दो मैं अकाउंटेंट बन गया। बट Tally एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आज Zoom एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हो, WhatsApp एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हो। सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर आप 3-4 सॉफ्टवेयर देखो ना तो आप खुद ही उन सारी चीजों में एक्सपर्ट, खुद से ही इंटरेस्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं अलग अलग चीजों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूं। बट जब टारगेट ही छोटा हो तो कैसे मतलब बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे? तो हम इस तरीके से आपको यहाँ पे कराएंगे। You will feel very much satisfied and contented. I have my students here who are sitting, they will also vouch for it and say कि सर ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है ना वो किसी कोर्स करे हुए बंदे से भी काफी रेलेवेंट मेरे को एक्सपीरियंस दे रहा है। उसको तक इतना याद नहीं, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल कोर्सेज में क्या होता है, एक थियोरेटिकल एंगल दिया जाता है। हमारे कोर्स में क्या है, मुद्दे वाली बात बता, वैसा चलता है। सो वर्ड में मुद्दे वाली बात, एक्सेल में मुद्दे वाली बात, टैली में मुद्दे वाली बात, जो नेसेसरी है आपको अपने स्किल्स को सुधारने के लिए। यही नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स का भी ख्याल रखा जाएगा, लाइक ड्राफ्टिंग, कैसे मैं प्रॉपरली लेटर्स ड्राफ्ट करूं, लीडरशिप, कैसे मैं एक सिचुएशन में हैंडल कर सकूं। लाइक आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, आप हमेशा एक जूनियर अकाउंटेंट तो नहीं रहोगे, सीनियर बनोगे, मैनेजर बनोगे, तो वो सारी चीजें। कम्युनिकेशन स्किल्स, हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ पे आप आपकी आवाज खुलेगी और आप हमसे बात करते, आपस में ग्रुप में बात करके उसको सीखोगे। ओके, so the better the group, the more you'll learn also. Maintenance of records, soft copies, hard copies, इतने सारे documents को आपको डील करना है, तो आपको क्या कुछ चीजें जानने की जरूरत है जहाँ पे आप उसको properly maintain कर सको। These are like minute things but will play a very big role in your life. When you go there, when you talk to people, when you're able to communicate them effectively, that is the point you will realize कि यार अगर ये skill होगा ना तो फिर तो मैं क्या नहीं कर बैठूंगा। So it's like that. So a proper communication skill is also required. That also we covered. We covered what is necessary for your memory, interview skills. We'll be giving interviews so much, research skills because you are in a profession that requires so much research, so much dynamism out there. मार्केट में कितना जीएसटी चेंज होता है, इनकम टैक्स, टीडीएस में रोजाना एक अमेंडमेंट अपडेट आती है। हमारे अकाउंटेंट्स कितने रेडी है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ और ये बहुत जल्दी ट्रू होने वाला है, अगर आप सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के रह गए, दिस विल ऑल बी टेकन ओवर बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप। Everybody's job will be gone if you're not upskilled yourself. And that is the point that courses like this will come into picture. It will just take over like computers did in 1990. Correct? वहां पर भी एक बड़ा शिफ्ट आ गया था, लोगों को कंप्यूटर्स जानना बहुत कंपलसरी हो गया था। सिमिलरली आपको भी अपने स्किल सेट्स को एक इलैबोरेशन देना पड़ेगा, एक ग्रोथ देनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई वी ट्राइड टू कवर मेनी थिंग्स। ओके, so just a break in between, but I will come back to a question. A lot of people here are asking me about the fees and all, but we will come in the end for it. And like other jobs and all,
लॉट रेलेवेंट। आप कोर्स का सिलेबस अभी ध्यान में रखना। विल बी टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द कोर्स, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड द फीस आफ्टर डूइंग दिस चेकलिस्ट, ओके, इन द लास्ट। टीडीएस का चेकलिस्ट, अभी हम आते हैं टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट पे। टीडीएस का चेकलिस्ट में सबसे पहले रेट्स हमेशा चेक करो। रिटर्न फाइल करने से पहले, टीडीएस का पेमेंट करने से पहले मेजर कंफ्यूजन होता है 194J 194C, क्या रेट पे टीडीएस डिडक्ट करूं। अगर आप कम करते हो तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा डिडक्ट करते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ओके, बहुत केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि भैया ये जो टीडीएस है ये कौन से सेक्शन में फॉल होता है। क्या 194C कॉन्ट्रैक्ट में फॉल होता है, 194J प्रोफेशन फीस में, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट प्रोफेशन फीस में फॉल होता है। इसमें 10% है, इसमें 2% है, इंडिविजुअल्स को किया तो 1% है, रेंट है तो उस पर कितना परसेंटेज है, 10% है या 5% है। all these confusions will always be there and you will have to check for yourself कि कब कौन सा प्रोविजन रेलेवेंट है। कोई नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया तब क्या होगा, 10% कटेगा, 30% कटेगा, उस पर सेस आएगा नहीं आएगा। all these questions and you'll have to go back and refer to these provisions to understand. So TDS rate is very important. Necessary thing again is TDS threshold, क्योंकि TDS में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रेट कि 194J में मैंने जैसे बताया 10% कटता है। अभी कोविड सिनेरियो में उस 10% का भी 7.5 कर दिया 31 मार्च 2021 तक। ओके, सो 25% डिडक्शन इन ऑल द रेट्स। तो अगर मैं 2% या 1% बोलता हूँ उसमें भी 25% डिडक्शन कर दिया कोविड सिनेरियो में 31 मार्च तक। ओके, एक और चीज होती है थ्रेशहोल्ड, जैसे प्रोफेशनल फीस में 30,000 के ऊपर अगर गया तो ही टीडीएस कट करना। तो सपोज आपके पास एक इनवॉइस आती है जिसमें 30,000 क्रॉस नहीं होता, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड 30,000 क्रॉस हुआ तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटने की जरूरत है। ओके, so all these things should also be taken care of. Rate and threshold is the most important. The other most important thing is the deduction time, क्योंकि टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होती है बुकिंग और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पे। विचएवर इज अर्लियर मतलब इन दो इवेंट में से जो भी पहले हुआ उस पे मेरी टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है, करेक्ट। सो मैं अगर बुकिंग कर लेता हूँ, मैं अगर पेमेंट कर लेता हूँ सपोज मेरे क्रेडिटर को, ओके, एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि टीडीएस हमेशा सर्विसेज पे लगता है। तो कोई अगर मैंने सर्विस लिया और उसको मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूँ, तो पेमेंट करते टाइम ही मेरे को उसका टीडीएस भी डिडक्ट करना है। okay? उसका इनवॉइस भले ही बाद में आए, अगर उसका इनवॉइस पहले आ जाता है और मैं उसको पेमेंट नहीं करता तो भी मुझे टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है गवर्नमेंट को। सो दिस डिडक्शन टाइम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टीडीएस पेमेंट जब भी आप लेट हो जाते हो, जैसे 7 तारीख को टीडीएस पे करना होता है और आपने 8 तारीख को पेमेंट किया, तो आपको पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट लायबिलिटी भी आ जाती है। ओके, सो you'll have to pay interest along with if you are delayed the TDS. If you pay by 7th, you do not have to pay interest. One more very important factor here is, अगर मैं 8th को भरता हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट लगता है पर मंथ 1.5% पर मंथ। तो वो इंटरेस्ट जो है ना वो पिछले महीने का भी आएगा, ये महीने का भी आएगा, क्योंकि डिडक्शन टाइम तो पहले का था। सो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जून का लायबिलिटी पे करना है जुलाई को, 7 जुलाई को, तो अगर मैं जून के डेट पे, जून 15 के डेट पे कोई टीडीएस डिडक्शन टाइम आ जाता है, बुकिंग और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पड़ जाता है, और मैं 7 जुलाई तक नहीं पे करता, 8 जुलाई को पे करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे को जून का भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जुलाई का भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो दिस इज full month or part of the month included. Okay, so all these things you'll have to take care of. Okay, one thing is interest, second thing is अगर आप रिटर्न्स लेट फाइल करते हो तो क्या होगा, टीडीएस रिटर्न्स की भी ड्यू डेट होती है, और अगर आपने टीडीएस रिटर्न लेट फाइल कर दिया तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है, मैक्सिमम अप टू टीडीएस अमाउंट। तो एक बंदा है जिसका टीडीएस रिटर्न्स हम फाइल कर रहे हैं एंड टीडीएस रिटर्न्स में उसका नहीं फाइल किया टाइम पे, ठीक है, तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। अब ये 200 रुपये की पर डे पेनल्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल कर देते, और सपोज उसकी टीडीएस की लायबिलिटी तो 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये तक ये पेनल्टी बढ़ता ही जाएगा, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी ट्वाइस हो सकता है ऑफ द टीडीएस अमाउंट। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को, जैसे हम कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में, कि you can also file your returns on time and later on revise it.
So that's a good hack to use. होता क्या है, कई बार हम रिटर्न इसलिए नहीं फाइल करते क्योंकि हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया करो। आप नॉर्मली अगर आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं है ना, तो भी आप विद इन ड्यू डेट फाइल करो, लेटर ऑन रिवाइज कर लेना। भले एक 100 रुपए की चालान भर दो ना रिटर्न, कुछ नहीं होगा, और फिर उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि दैट इज फाइल्ड ऑन टाइम, देन यू विल नॉट इनकर लेट फी। एटलीस्ट 200 रुपी पर डे नहीं आएगा, इंटरेस्ट फिर भी आएगा क्योंकि पेमेंट लेट हो रहा है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग में कुछ डिले नहीं है। So that important hack you can use there. Okay, I hope that was a very valuable information. Then you can check for your default. Every time you file your returns and pay your taxes, there are various defaults that you can check from the Traces website, TRACES TDS cpc.gov.in. उसमें आप चेक कर सकते हो कि कोई डिफॉल्ट तो आपका रह नहीं गया हो. You can just clear off your default while you are filing. Then remember that you will have to download Form 16 and 16A. Okay, this is also a very important point in TDS, that TDS returns तो आपने अपलोड कर दिए 30th को, 31st को अपलोड कर दिए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये TDS के सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड करने होते हैं. ठीक है, सो ये भी आप इंश्योर कर लेना कि आप रिमाइंडर रख लो अपने आप के लिए कि आप ये डाउनलोड करो 16 and 16A. Certain other points in filing TDS while doing TDS is reconcile the चालान and deducted details while filing your returns, कि आपके जितने भी चालान है उसमें सारे डिडक्टिव कवर हो गए कि नहीं. फिर TDS रिटर्न्स के एक्नॉलेजमेंट आप एक्नॉलेज करके अपने पास रखो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट लेटर स्टेज पे आपको पोर्टल पे चेक करने के लिए काफी हेल्प करेगी. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को TDS का कॉन्सेप्ट तो पता है, TCS का कॉन्सेप्ट नहीं पता. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लाइक व्हेन यू normally you deduct TDS for your suppliers, right? But sometimes a TCS liability may also arise when you supply, when you sell something. Okay, so there are certain list of things on which TCS is applicable. Those lists you will have to refer to and then see the applicability of TCS there as well. और अगर समझो आपका किसी ने TDS या TCS काटा होगा, वो कहाँ पे दिखता है? So वो आपके क्रेडिट लेजर में 26AS में दिखेगा. वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. इसको मैंने थोड़ा अलग रखा है कि सपोज अगर कोई मेरा TCS या TDS काटता है तो वो मेरे कहाँ दिखता है? फॉर्म 26AS में. फॉर्म 26AS is available online, okay, in your income tax portal. So when you go there in your form 26AS, you can check whether your TDS deduction is matching with the form 26AS or not. Another thing that you should check is you should always consider एडवांस टैक्स कैलकुलेशन में भी आपको TDS को कंसिडर करना है और बैलेंस पे ही एडवांस टैक्स भरना है. एंड जैसे हमने GST में भी बात किया था, TDS की भी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए. जैसे एक लायबिलिटी लेजर क्रिएट होके उसका पेमेंट का लेजर होना चाहिए, तो वो भी आप इंश्योर करो. हर मंथ क्लोजिंग करते वक्त वो आप इंश्योर कर लो. ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज फॉर GST. Like you have credits, you pay liability, set it off and then make payment, match it with your credit ledger there. Same thing applies with TDS here. So this is what we've covered in the TDS checklist that I had for you. In the last section, we've almost done with our time. So in the last section, now I will discuss some key aspects about the bookkeeper course. This will also consider all the questions that you've just asked. Like I said, bookkeeper course कितने time में हम पढ़ाएंगे? 1 month. It's like a 1 month course. 1 month में हम Monday to Friday पढ़ाते हैं. ठीक है, so 1 month learning you will go through, but the benefits that you get is for your lifetime. Okay, it will really push you forward and make you more confident and comfortable when you are working. It will definitely do that to you. Fees, like some people were asking, the fees that we charge is 6,000 and we do this webinars every month. So whenever we conduct a webinar में जो भी attendees होता है उनको special discount coupons दिए जाते हैं. That is a 20% discount and this everyone will get. Okay, it's a common discount for all. What all do I get in 6,000? How do I ensure that I have got enough? So इसमें मैं आपको बताऊँ आपको क्या क्या मिलता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको एक्सेस मिलता है हमारे वीडियो लाइब्रेरी को.
इसमें हमने 42 वीडियोस अपलोड किए हैं जो हमारे सारे पोर्शन के जो भी चैप्टर्स है उसको कवर करता है. So it's like an explanatory thing that you get there, and what you have to do is you have to watch video before coming into the lecture. So lecture में lecturing नहीं, ठीक है, lecture में coaching, और teaching कहाँ पे, वीडियो में. तो वो एक डिस्टिंक्शन हमने क्रिएट किया. ग्रुप लेवल ऑफ कोचिंग होता है उसके बाद 1.5 आवर्स डेली, 1.5 घंटे का, मंडे टू फ्राइडे, नॉर्मली मॉर्निंग्स को. तो मॉर्निंग 8 से समझो 9:30, तो आपका काम का टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होगा. सो आप नॉर्मल काम पे जा सकते हो, दूसरी चीजें कर सकते हो बाकी दिन में, ठीक है. सो ये 1.5 आवर्स में मंडे टू फ्राइडे हम जब बैठेंगे तो हम आपको बोलेंगे कि चलो ये वीडियो देख के आप आ जाओ. फिर जब आप आओगे क्लास में हम डाउट से शुरू करेंगे. सो लाइक आज कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वहां पे क्लासरूम में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वहां पे सीधा डाउट्स पे स्टार्ट होगा. हमने आपको असाइनमेंट्स दिए होंगे. ये एक और यूएसपी है हमारी कि हम असाइनमेंट बेस्ड टीचिंग भी करता है, कोचिंग भी करता है. तो होता क्या है, असाइनमेंट्स करने में आप कहीं हिट हो जाते हो, जब धक्का लगता है तो आदमी को सबसे ज्यादा समझ में आता है. इट्स लाइक दैट. तो आप वहां से हिट करोगे और हमारे पास आओगे. जब आप हमारे पास आओगे तो बोलोगे कि सर आपने जो ये शीट दी थी उसमें आपने ये यहाँ पे लिखा है, इस चीज में आंसर ये क्यों आया सर. सो that would be our starting point, the interrogation there, the inquiry starting there, and that will not only develop your interest but also our understanding of that subject will be much 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 better. And जो भी practical assignments हमने बनाया है, हमने क्या किया है, एक virtual environment बनाने की कोशिश की कि real life में आप यहाँ पहुंचे, ये हुआ तो इसमें क्या impact आएगा, इस तरीके का होता है ये, ठीक है. More than 35 practical assignments designed especially for you to give you a simulated experience. That is a practical experience sort of. It's like a virtual training for you. देखो आमतौर पे मैक्सिमम लोग, लाइक मैं इंटरव्यूज लेता हूँ हमारे फर्म में, एंड मैंने पिछले 7 सालों से या 6 सालों से तो इंटरव्यूज लिए हैं. जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, सीए फर्म में एक ही चीज के लिए आते हैं. मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कितने लोगों को भी पूछो, बोलो क्यों, सीखने के लिए. सीखने में कितना टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं. फिर वो यहाँ से सीखते हैं, फिर जाते हैं कॉर्पोरेट्स में. हमने बोला ये 2-3 साल आपके क्यों ना बचाया जाए, क्यों ना आपको 1 महीने में वो सारी बातें हम एक कैप्सूल के तौर पे दे, आपसे वो सारी चीजें एक कोर्स के तौर पे कराए, जो आप कहीं बाहर जाके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू समझने की कोशिश करोगे. जब आप ये कोर्स के थ्रू समझते हो, फिर आप इंटरव्यू देने जाते हो, सोचो आप कितने कॉन्फिडेंट फील करोगे वहां पर. करेक्ट. दैट इज आवर मेन आइडियोलॉजी दैट वी आर वर्किंग हियर. देखो ये यहाँ पे सर्टिफिकेट्स कुछ मायने नहीं रखेगा. आप जब काम पे जाओगे ना, आपका काम ही आपके लिए बोलेगा. फिर जाके वो नहीं पूछेगा 13th में कितना मार्क्स आया, 10th में कितना मार्क्स लाया, ठीक है. वहां पे जाके आपके साथ वो सब चीजें नहीं होने वाली. जो चीज होने वाली है वो है प्रैक्टिकल एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे. तो ये असाइनमेंट्स आपको वैसे हेल्प करेंगे. उसके साथ हमने क्विजेस भी रखे. हर टॉपिक पे कहीं ना कहीं वो एक क्विज सॉल्व करने पे भी आपको एक अच्छा एक्सेस मिल जाता है. तो 210 क्विजेस है हमारे पास ऑलमोस्ट. सो एवरी टॉपिक पे 5-5 क्विज हमने डाल दिए. सो इस तरीके से वो जब आप क्विज भी सॉल्व करते हो, आप देखोगे हमारे लाइव लेक्चर्स में, हम जब क्लास में आते हैं तो जब लोग आते हैं हम क्विजेस से कई बार स्टार्ट करते हैं, चलो क्विज खेलना स्टार्ट करते हैं. सो खेल खेल में भी समझ में आता है. फिर देन यू गेट अ फ्री एक्सेस टू आवर नेक्स्ट बैच. इट्स अ डिक्लेयर्ड थिंग दैट कई बार वो 1 महीने में शायद आपको कुछ कुछ चीजें ऐसे लगे, ठीक है, कि आप भूलने लग रहे हो या आपको रिविजिट करने की जरूरत है. तो आपको नेक्स्ट बैच में जो भी हमारा होगा, आपको ये रिवीजन का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. जरूरी नहीं है आप सारे जगह पे आओ, आप आना चाहते हो तो आ भी सकते हो, पैसा वसूल होएगा. नहीं तो भी जो जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है वो टॉपिक्स पे आप रिविजिट करो. जब नेक्स्ट टाइम डाउट्स लेके आओगे तो आप एक परफॉर्म्ड, एक रिफाइंड डाउट लेके आओगे हमारे पास. मे बी दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैंडल. Okay, over there also it will be very fruitful interaction for you. And nevertheless कुछ topics काफी important होता है, जैसे TDS, GST, ये आपको बहुत डे टू डे, मे बी टैली, डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा. तो आप वो रिविजिट भी कर सकते हो. 1 महीने बाद जब रिकलेक्ट करोगे तो वापस वो आपके मेमोरी में काफी इनबिल्ट हो जाती है. ऑफ कोर्स ये भी साइंटिफिक है कि एक दिन पहले वीडियो देख के अगले दिन उसी पे क्वेश्चन आंसर किया, सो वो भी आपके मेमोरी पे काफी हेल्प करता है. तो इनफैक्ट सेम चीज समझो, आपने वीडियो देखा, एक बार डिलीवर हुआ, आप क्लास में आपने असाइनमेंट्स किया, दूसरी बार डिलीवर हुआ, आपने क्विजेस सॉल्व किए, तीसरी बार डिलीवर हुआ, आपने अपने डाउट्स पूछे, चौथी बार डिलीवर हुआ. वो चीजें इतनी बार रिपीट हो जाती है कि आपको जिस
तौर पे चाहिए ना, उस तौर पे आपके अंदर एम्बेड हो जाती है. करेक्ट. वेरी रेलेवेंट, कस्टम मेड फॉर यू, like you want it to be served. And when we talk to you, we know what you understood, what you did not understood. Batch size कभी बड़ा नहीं होता. ठीक है, हम छोटे batch size रखते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है, we know what doubt you are facing, we will ask you personally कि बताओ इसमें क्या था, बताओ इसमें क्या था. That level of interaction we will be having. So in all, I hope it was a wonderful time with everyone. We still have like some time, and in the chat section you can ask any kind of questions. So Jigar Pandya is asking here, is it help when we give exams for IBPS for bank jobs? uh, See, banking and finance, we have one of our topics. The other topics is accounts, and GST and income tax is a very good thing to know. So I think definitely this will add value to you, but this is not designed to have a bank job. Okay. But this is of course designed for an accountant. An accountant everywhere is an accountant, and he should know certain things. Okay. तो ये आपको definitely काम करेगा. It's a thumb raise. And timing, like I said, we do it in mornings. So 8 to 9:30 is the timings. We open up for questions. Anyone having any questions, you are most welcome. And कोई भी मतलब इस सेशन में जो हुआ, अगर उस रिलेटेड भी कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. Thank you so much, Tamanna. I hope you all liked the webinar and it was very useful to you. If you have any more questions, you can please ask. We still have a minute left. And what we did today, just to take a gist of everything that we did today, is what we learned is one thing we learned is GST का checklist देखा, purchase के time पे क्या करे, sales के time पे क्या करे. You can keep asking your questions, okay, in between. Just disturb me as much as you can. Jiga says, wonderful webinar. Thank you so much. How to revisit next month's seminar. We will be posting it all through our Facebook pages, LinkedIn pages. You can anyways access there, and we have your number. So we'll try our utmost. We've इस बार भी हमने काफी लोग इसको भी vouch करेंगे, हमने बहुत regressively follow up भी किया है. So we are very dear to us, and some of the people sitting here are Neeraj, our student, who is our personal friend. So हमने ये सोचा कि हम इसका special ख्याल रखें. Okay, just like a gist for someone who would like to understand, sales का checklist देखा हमने, जिसमें हमने काफी सारे points आज सीखे. 1 2 3 4 5 6 7 points सीखे. फिर purchases के checklist देखे, जहाँ पे हमने inputs कैसे लेना चाहिए, GSTR 2A क्या होता है, वो सारी चीजें सीखी. इसके अलावा हमने पूरा ITC का credit कैसे avail करना है वो एक बार revise कर लिया. पूरा बुक कीपर कोर्स 6 स्किल्स पे हम काम कर रहे हैं, वो सारे स्किल सेट्स मैंने आपको बताया. फिर मैं आया TDS के चेकलिस्ट पे. TDS के चेकलिस्ट पे मैंने रेट, थ्रेशोल्ड, डिडक्शन, टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना चाहिए, TDS पेमेंट, रिटर्न्स के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना चाहिए. इनफैक्ट कई और बातें जैसे रिकनसाइल करना और 26 AS से रिलेटेड और अकाउंटिंग करना उसका प्रॉपर, ये बातें कंप्लीट की. बुक कीपर कोर्स को हमने जाना. ये 1 महीने का कोर्स है, बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे. फीस 6000 होगा, 20% डिस्काउंट स्ट्रेट फॉर ऑल द पीपल हु अटेंडेड, एंड व्हाट ऑल थिंग्स विल गेट we will be covering there. I just displayed you that we do not mind repeating things 100 times also. So I'll be keep on okay, some people are asking how to, can I see this video again. We will be putting up this in our YouTube channel, and we'll be sharing your link, a personal link to you all. Okay, we have your numbers, we'll take care of it, that we'll share this link to you all.